So good morning everyone. A very good morning to you all. तो अगर आपने कल का असाइनमेंट किया है, आपको कैसा लगा जब आप पानी पी रहे थे या आपने खाना खाते समय धन्यवाद किया, तो इफ यू ऑल कुड शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? एनीवन? मे बी आप जब वाटर को ऑब्जर्व कर रहे थे, जब आपने ऑब्जर्वर इफेक्ट किया, तो आपको कैसा फील हुआ? जब हम लोग ने आपको क्लास में वो एक्सरसाइज कराया था कि जब पानी पीते हैं तो आप कैसे उस पर ध्यान लगाएंगे और धन्यवाद बोलेंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया और आपको अगर बहुत अच्छा लगा, एनीवन कुछ शेयर? And if you all saw the Pollyanna movie yesterday, how did you feel to know about the Glad game? नदुशी जी, आपको कुछ बोलना है? Thank you, Ashmita. Glad you like the movie and the Glad game too. Yes. नहीं, मुझे यही बोलना था, मुझे भी बहुत अच्छी लगी पिक्चर, मैंने कल देखी थी, आई सॉ yesterday. Wow, Wow. Thank you, Madhushi. thank you. What I loved about the movie the most was how she was so positive in the worst situations. She was like, I'm so glad about this, I'm so glad about that, even when the situations were so harsh on her. So, yeah, it was amazing. So much to learn from the little child. Thank you for sharing. Thank you, Ashmita. Thank you for your wonderful sharing. Most welcome. Hi, good morning, everyone. Good Good morning. morning. On a very unrelated note, not related to the movie, I just wanted to share something Yes, yes. about. So, what happened was basically I had to shift from the city I was working in to my home city because of this pandemic. I was trying to set up something of my own work, or like get something started, right? And I have been trying it since the past 2 months, but facing a lot of challenges in the process. But since the past couple of days, I can just see like work flowing in, and I was shocked, and I'm still surprised that the thing I've been trying since so many months, it's not happening. And since the past couple of days, I can see people. I'm getting emails from people about work inquiries. Some money that was sort of stuck since the past 3 months, I got it yesterday in my bank account. So like it's definitely magic. So thank you all of you for Thank you. getting Wow. this journey started with us. Thank Yes. you. Thank you so much. Thank you. Hope you get more and more of money and happiness. Yes. And today's chapter is wonderful. Yes. So it's just related to something which you have shared. Yeah. And all of us will just love it. Thank you. Thank you, Yamini ji. Thank you. We'll be shortly beginning the running. तो अगर आपको और कुछ भी डाउट है या कुछ शेयरिंग करना है तो आप जरूर कर सकते हैं. You're on mute. ओके आप लोगों ने कल जो एक फॉर्मूला बताया ना कि पानी को शुक्रिया, रियली जब मैं कल 3-4 बार पानी ऐसे याद कर करके पीना, पानी का ग्लास ली, उसको पहले शुक्राना की, एज माय होली चैंटिंग आई हैड डन, तो फील एक अच्छा रिमाइंडर हो गया भगवान को याद करने का, और मेरे को तो पानी के टेस्ट में भी बेटर लग रहा है. थैंक यू सो मच. करते थे आप लोगों ने वापस से याद दिला दिया. हर ग्लास के पानी के साथ अब मैं चालू कर दूंगी. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank Thank you you. for your You're sharing. welcome. Thank you. कल जो पानी का आपने बताया था ना, तो 70% of our body is made of water.
सो मैं जैसे पानी पी रही हूँ तो मुझे थैंक्स उस वाटर के लिए भी है जो इनसाइड इन माय बॉडी. Very true. Very true. Very true. Thank you. Thank you, Auntie. अगर किसी के पास कोई और शेयरिंग है, नहीं तो हम लोग अब रनिंग स्टार्ट करेंगे. अगर कोई भी किसी को और कुछ शेयर करना है आपको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रनिंग. सब लोग एकदम खड़े हो जाइए एंड आई स्टार्ट द म्यूजिक. So my request to all of you is that please don't miss this wonderful opportunity. We are doing a peak state programming. And आपको आइडिया भी नहीं है कि आपका एनर्जी लेवल में you'll start seeing differences in just 1 week and 2 weeks. Sakshi, Ariraj and I also started seeing once we started doing this rigorously. I mean, please, it's an amazing thing. So all of us need to declare ourselves as the winner. Sakshi, let's begin. So, right foot in front, please. I'm starting the music. To reach the peak state. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm I the can, winner. I shall, I I'm the must. winner. Left foot in front, please. Left पाँव को आगे रखिए. Faster, 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 faster. Run, 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 run. Faster, 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 faster. I'm the winner. 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 Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Madhushri ji, Babita ji, and Mansi ji for keeping a video on. हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? How's the जोश? How's the energy? I'm the winner. Yes, all of us are the winners. We all need to declare ourselves as the winner. Yes, Shashvi. Yes? You can hear me, right? Yes, I can hear you. So now we begin the session with a prayer. This beautiful morning, we pray to a divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. As the day unfolds, transforms into a magical day for us and those around us. Thank you, thank you, thank you. So today, before we begin the session, I would just like to show you all something.
So today all of us need to be Gajni. So I would like any one of you to unmute yourself and tell me what you actually interpret from this picture. Anyone? Okay, I'll explain. So just like, एरोगेंट लग रहा है, okay, thank you, प्लस Madhushi. हेल्दी, Thank you. नॉट हेल्दी बट लाइक Thank you. Thank you. So I'll explain you. So आप लोग देख रहे हैं कि आमिर खान के body में there are tattoos because he has started all the important things which he wants to remember. So just like that, from today, we need to tattoo all the important things which we want to take from these chapters. So this is a proven science that whatever stays in your head is dead. So आप जो भी इस chapter से learn करें वो 1 week में भूल जाएंगे. So my request to all of you is that please make pointers of the chapters which we are studying, the important pointers, and just tattoo them anywhere on your wall. So whenever we face any challenge in our lives, of course we can't refer to the chapters again, but अगर वो pointers हमारे सामने रहेगा तो हमारा life इतना easy हो जाएगा. We'll have so many things to refer to. So let's all tattoo all the important things from today. So I'll show you an example. So yesterday, since we had to thank our water. So this is what I did. On my coaster, I wrote this thing. So this is in front of me. Even if I forget, I will never be able to forget because I have tattooed this thing on my coaster. So just like that, all of us need to tattoo all the important things which we are learning from this session. And one more thing, आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से आमिर खान अपने आप को मिरर में देख रहा है. So as Aryan Raj explained us 2 days ago about self-love and L-drag, just like that, इस इंटेंसिटी से हम लोग को अपने आप को मिरर में देखना है and अपने आप से प्यार करना है. So all of us need to love ourselves because you won't even know what miracles you'll start seeing. So thank you. And now we'll begin our beautiful day with a beautiful chapter. So I would like someone to nominate themselves to read this beautiful chapter today. Anyone? I can volunteer. Okay, Pavanji. Thank you so much. Please begin. Day 9, the money magnet. It's only with gratitude that the life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Yes. So today is day 9 and our chapter is on money magnet. So just as we explained you before, magnets कितने effortlessly metal particles को attract कर लेते हैं. Just like that, as the author told us, all of us are going to be magnets with gratitude in our life. The higher your gratitude, more magnetism power. Lesser gratitude, less magnetism power. तो हम लोग सबको वो strong magnets बनना है. And how can we become a strong magnet and attract more money in our life? By being in gratitude. So it is only gratitude that will make your life complete. That will make your life full of abundance. Rich सिर्फ ये मतलब नहीं होता आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं or how much jewelry you have, but how your bank account, how your mind and your thoughts are filled with the richness of gratitude. So let's begin, Pavanji. Gratitude is riches and complaint is poverty.
It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magic practice turns out one of the Turns one. biggest reasons. You want me to stop? No. I said turns one. Okay. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an sorry It's okay. into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which pay change, Yes, I've changed. yeah, magically brings you riches. Yes. So gratitude is riches and complaint is poverty. The author is again repeating these lines. Because it is only through gratitude you will get all the prosperity in the world. You will get the path of success in the world. And ये golden rule है, चाहे आपके health में हो, आपके career में हो, या आपके relationship में हो. If you complain, you go 10 steps behind from your dreams which you have written on day 0. हम लोग का एम है, हम लोग को अपने ड्रीम्स को पाना है. We need to attract our dreams, ना कि we need to go 10 steps behind. So today's magical practice, all of us are going to replace our complaint and just get gratitude there. So it's wonderful. Please continue, Pavanji. Most people wouldn't think they complain about money, but if there's a lack of money in their life, they're complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. Yes. So I'll give you a very beautiful example here. So there was this woman who really wanted a Mercedes car, but she did not have the money at that time to buy the particular car. So one day while returning home, she saw that her neighbor had got the same model of Mercedes car which she wanted. But so beautifully, neither her thoughts nor her words were negative. She did not complain even once. वो चाहती थी तो वो jealous हो सकती थी. But as soon as she saw that her neighbor has the same car, she was filled with love and she had tears in her eyes and she was so happy. She was just giving blessings to her neighbor. And आप believe नहीं करेंगे 1 week में उसने कैसे money attract कर लिया and she got the same car. So when we complain about money, when we criticize about money, money will just fly away from us and हम लोग को पता भी नहीं चलेगा. Because complaint is poverty. Repeatedly, the author is trying to explain us that don't complain, be it whatsoever. Please continue, Pavanji. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there's a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do is to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you've received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस तो जब हमारे पास मनी नहीं होता है, जब हमारे पास मनी नहीं है अपने बिल्स के पे करने के लिए, so gratitude is the last thing you'll think of. Yet gratitude will make you attract more money in your life.
There are two parallel things from which you attract success and abundance and wealth in your life. First is mehnat, hard work, and second is किस्मत. मेहनत तो आप सबको करनी ही है, लेकिन अपनी किस्मत को भी अच्छा चमकाना है. हम लोग को अपनी किस्मत को खराब नहीं करना by coming below the line. चिंता चिता है, घबराना नहीं है. जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो, जल्दी से अपने कॉपी पेन को उठा के just start writing gratitude for the present money which you have and for the money which you got in the past. अगर आपके पास मोबाइल फोन है, you have electricity in your house, just be grateful. जब भी लाइफ में चिंता सताए, आप अपने कॉपी पेन को प्लीज उठाए, because you don't even know what miracles will start happening in your life. Means you can write pages and pages to be grateful for, instead of talking to people कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, I just don't have bills to pay. You need to be in gratitude. I'll give you a very beautiful example. So there was this man and he had all his bills piling up. मतलब एक के बाद एक bills आते गया. And he had 3 children and he had a family to lead. But you won't believe, repeatedly every day in the morning and every day at night, he thanked universe for the wealth he has. He just kept thanking, thank you God for the prosperity of wealth. Thank you God for the abundance of wealth, and in a very relaxed and peaceful manner. Till the word thankful dominated his mind, till it was in his subconscious mind. And 10-15 days बाद वो एक former employer को मिलते रोड में, whom he hadn't even met for 20 years. You won't even believe that employer offered him a position in the company with an advance of rupees 5 lakhs. And that day when he came home, he thanked God and he understood the wonders of the word thank you. And उस दिन के बाद वो बस gratitude में रहा. तो वो इंसान जिसके पास इतने बिल्स थे लाइफ में, अगर वो कंप्लेन करता, वो घबराता, वो चिंता करता, तो क्या उसके पास मनी आता? नहीं, मनी तो बस उससे दूर भागते जाता, क्योंकि वो चिंता में है. वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. हम लोग जो सोचते भी है ना, वो भी हो जाते हैं. हम लोग तो बस ये सोचते कि क्या यार वर्ड्स बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मतलब थॉट्स तो थॉट्स है, माइंड में है, यूनिवर्स को क्या पता चलेगा? नो, the universe knows what you're thinking and what you're speaking, and your mind is an amazing place. आप जो डिपॉजिट करेंगे वही मैग्नीफाई करेगा आपके लाइफ में. So think before you speak and think about your thoughts. Please continue, Pavan ji. To be grateful for a bill, think about how much you've benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. Yeah. What is the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it. What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord, because they have made it possible for you to live in a home or apartment. Imagine, अगर हम लोग 1 second पावन जी, अगर हम लोग खुद पैसा कमाते हैं, खुद ही बचाते, मतलब there would be no landlords and we would not be able to pay small installments. कितने सारे लोग किराए पे घर पे रहते, पर सोचिए लैंडलॉर्ड्स ही नहीं होते तो क्या किराए पे लेते हम लोग, कैसे किराए पे लेते? All of us would be practically living on the streets. So thank the landlords. There are lending institutions in the world. हम लोग कितने बार लैंडलॉर्ड्स के बारे में गंदा गंदा चीज बोल देते हैं, क्या यार पैसा तो अच्छा दे ही नहीं रहे, क्या यार डील तो अच्छा दे ही नहीं रहे. पर क्या वो अगर लैंडलॉर्ड नहीं होता, आप घर पे रह पाते किराए पे? आपको खुद ही पैसा कमाना पड़ता, खुद ही बचाना पड़ता और खुद ही आपको खरीदना पड़ता. So think, means how lucky all of us are. Please continue, Pavan ji. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually.
Think about how many times you've been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing the services before you have paid for them. Yes. So all of us have so many services. आप सोचिए अगर हमारे पास फोन नहीं होता so we would have to travel so many miles to just talk to a friend जो बॉम्बे में रहती हो या दिल्ली में. But because today's technology is so advanced, we have Zoom apps, we have Wi-Fi, we have internet, and हम लोग को कुछ बिना सोचे समझे सब मिल जाता है because universe has such abundance of things. We just get it on our fingertips, and all of us have so much money to pay for our bills, for our rents, for our phone bills, for our internet bills, and everything. मतलब हम लोग कितने lucky है. Yet we are just complaining about money. Yet we are just cribbing about money without knowing sometimes, and sometimes intentionally. आप कितने बार सुनते होंगे अरे यार कोई पैसा का मतलब नहीं है क्या घर पे बिजली बंद करो इलेक्ट्रिसिटी मत वेस्ट करो. आप अच्छे से भी तो बोल सकते हैं ना. आप अनइंटेंशनली पैसे को अपने आप से दूर कर रहे हैं. मीन्स वी डोंट इवन नो हम लोग दिन में कितने बार पैसे के लिए क्रिप कर देते हैं. बट वी नीड टू बी ग्रेटफुल. वी नीड टू बी इन ग्रैटिट्यूड. प्लीज कंटिन्यू पवन जी. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you're receiving an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. So this is the first Next. assignment for today. You need to take any currently unpaid bill जो अभी तक आप pay नहीं किए, and if you don't have the money to pay, so still we need to write thank you for the money, and we just need to be grateful कि God आपने मुझे इतना दिया है. मतलब मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है इस दुनिया में. And just keep feeling and just say thank you for the money. Now we're coming to the second task. Continue, Pawan ji. Next. Shall I continue? Yes. Next find. Yeah. Next, find 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you've paid, the more money you will magically magnetize to you. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you've received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical powers and write, thank you for the money. And feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. Yes, so today's second assignment is you need to find 10 bills in the past जिसका आप पेमेंट कर चुके हैं, and you need to write on the bill thank you paid and feel very grateful that you had the money to maybe pay for a phone, for a book, for vegetables, for fruits, and feel it कि आपके पास वो 10 रुपया भी था पेमेंट करने के लिए या 100 रुपया भी था, जो भी डिनोमिनेशन है. You won't believe when I did this practice for the first time, I thought कि thank you paid क्यों लिखना है, मैंने तो पेमेंट कर दिया मतलब हो गया, क्यों लिखना है. आप सोच नहीं सकते how good I felt.
I felt amazing. Matlab, the day I had to do this practice for the first time, so I had gone to the market to purchase some fruits with my dad. And when I came home, मैंने उस बिल को देखा, वहाँ पे apples and bananas मैंने खरीदा था. And मतलब gratitude बहुत deeply होना चाहिए. वाह भगवान, मतलब thank you for this apple. जिन्होंने भी ये create किया, मतलब क्या स्वाद आ रहा है मेरे मुंह में. And I'm getting so healthy. Because an apple a day keeps the doctor away. Thank you to the fruit seller who sold me. Thank you to the trees who grew it. आपको इस हद तक ग्रैटिट्यूड फील करना है. ऐसे नहीं कि बस थैंक यू पेड लिख दिया. फीलिंग्स, एहसासों की दुनिया है ये. फीलिंग्स आर द फ्यूल. जितना फीलिंग्स डालेंगे उतना आप अट्रैक्ट करेंगे. Universe is seeing the amount of feelings, the amount of love, the amount of gratitude you are giving. So एकदम डीपली घुस जाने उस चीज में जो भी आपने परचेज किया है. एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील सो गुड टुडे. इससे पहले मैंने कभी थैंक यू बोला ही नहीं था फॉर द थिंग्स आई परचेज्ड. प्लीज कंटिन्यू पवन जी. Feeling gratitude for the for the money you've paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Yes, so the abundance we receive doesn't depend हम लोग कितना मनी किसी को दे रहे, बट कितने शिद्दत के साथ, कितने ग्रैटिट्यूड के साथ दे रहे हैं. बहुत बार तो लोग बस ऐसे ही देते थे, अरे यार बेचारा है 10 रुपए दे दो. क्यों? Why we cursing? Why we saying बेचारा है? से भगवान, ये जहां भी पैसा जाए, जिसके भी फैमिली में जाए, उसका मतलब so much blessing, उसकी लाइफ चमत्कार हो जाए. उसको इतना ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो आपको लाइफ भर थैंक यू बोले. आप ये मत सोचिए कि अगर आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए ही आएगा. वो 500 रुपए भी आ सकते हैं, वो 100 रुपए में भी आ सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स 100-fold. यू डोंट इवन नो. जब आप किसी को तन मन धन से पैसे के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, पैसा अच्छे मन से देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा आपको आइडिया भी नहीं है. Miracles will start happening in your life. All of us need to start respecting money. We need to start being grateful for the money we have. ना कि complain और criticize. हम लोग किसी को भी पैसा देते ना, अच्छे मन से दो. ये हमेशा ध्यान रखना. अगर आप अच्छे इंटेंशन से नहीं दे रहे हैं तो आपके पास वो आएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है, उसको तो अपना पैसा मिल गया, बट हो सकता है भगवान फिर आपके साथ ऐसा कुछ करे. सो फ्रॉम टुडे अच्छे मन से कुछ भी धन देते हैं, अच्छे मन से देना है. एंड वी जस्ट नीड टू ब्लेस एवरीवन वी गिव. And thank you for the money that we have, that we could pay so many bills, that we have so much in our life. Please continue, Pawan ji. Magic practice number 9, the money magnet. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. So the author has repeatedly telling us since 8 days, first count your blessings, and second, before you go to sleep, do your magic rock.
क्यों ये रिपीट करें? ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए दैट बस ग्रैटिट्यूड से डे स्टार्ट करना है एंड ग्रैटिट्यूड से डे एंड करना है. सो आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस. सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट. इवन वन डे हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा इस मैजिक की दुनिया में. एंड टुडे यू हैव 2 टास्क. सो अगर आपके पास कोई करंटली अनपेड बिल्स हैं तो यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मनी एंड फील एज ग्रेटफुल कि वो पैसा आपके पास एकदम आ चुका है एंड चमत्कार हो जाएगा. मतलब कमाल की दुनिया है ये. एंड देन टेक 10 बिल्स जो आप ऑलरेडी जिसका पेमेंट कर चुके हैं and उसके अक्रॉस यू कैन राइट थैंक यू पेड. सो अगर आपके पास वो बिल्स नहीं है आप अपना खुद का भी बिल बना के लिख सकते हैं. एंड ये तो आज के लिए है बट आप एवरी डे हम लोग कितना कुछ परचेज करते हैं. सो यू कैन डू दिस एवरी डे एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मतलब मैंने छोटे छोटे मैजिक्स देखे. आई स्टार्टेड सीइंग डिस्काउंट्स एवरीवेयर. मुझे डिस्काउंट्स मिलने लग गया, मुझे 1-on-1 फ्री मिलने लग गया. मतलब miracles will start happening in your life. It's brilliant. So thank you Pavanji for reading this beautiful chapter for all of us so nicely. Thank you. And now I would request Sakshi to begin the chapter in Hindi and explain all of us beautifully. So thank you, Yashasvi, for your wonderful, wonderful explanation, and thank you, Pavanji, for reading the chapter in Hindi. तो आज हम अब reading the chapter in English. आज हम chapter हिंदी में पढ़ेंगे. This is the 9th day we have entered into week 2. तो जब एक बच्चा बड़ा होता है तो पहले क्या करता है? वो क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर खड़ा हो जाता है और फिर भागने लगता है. सिमिलरली हम लोग सब यही कर रहे हैं. वीक 1 में हम लोग क्रॉलिंग करना सीखे, कैसे हम लोग अपने पास्ट के चीज के लिए धन्य हो सकते हैं. अब हम क्या सीखेंगे? पास्ट ही नहीं बट प्रेजेंट में जो हम लोग के पास धन है या नहीं भी है उसके लिए हम लोग कैसे धन्य हो, हम वो अब सीखेंगे. तो आज का चैप्टर है धन का चुंबक. चुंबक मतलब मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है? कोई चीज जो अट्रैक्ट करता है कोई चीज को. तो मैं प्लीज चाहूंगी कि कोई अपने आप को नॉमिनेट करे हिंदी में पढ़ने के लिए. नीलम, I would like to read. ओके, प्लीज स्टार्ट. 9वां दिन, धन का चुंबक. केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है. डाइट्रिक बॉनहोफर, लुथेरन संप्रदाय के पादरी. तो आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है. मेरा तो लाइफ हैप्पी है, आई एम तो सेटिस्फाइड विद द मनी आई हैव. बट आप खुद शांति मन से ट्राई करिए सोचने का, क्या आप फुल्ली सेटिस्फाइड है? क्या आप सेटिस्फाइड नहीं होके, खाली सेटिस्फाइड होना तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके आगे भी तो कितना कुछ है. फीलिंग स्टार्ट में खुश होना, जॉयफुल होना, पीक स्टेट में होना. तो अगर आपको पीक स्टेट में जाना है, सेटिस्फैक्शन पे ऊपर उठना है, तो आपको क्या समझना है कि वो सिर्फ केवल कृतज्ञता से ही आ सकती है. मतलब आप आज ये प्रैक्टिस को जब कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करिए, समझने का ट्राई करिए, फिर आप खुद बोलेंगे कि हाँ, द ऑथर इज कंप्लीटली करेक्ट. हम लोग पास्ट के लिए थैंकफुल हो चुके हैं, आज से हम लोग प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए थैंकफुल होंगे. प्लीज कंटिन्यू. कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी. यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है. चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो. आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी. और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायतें करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे. तो एक सेकंड, आप एक चीज सोच लीजिए कि आप जितना शिकायत करेंगे, हम लोग को पता है वी आर मूविंग अवे फ्रॉम आवर ड्रीम्स. सिमिलरली आप धन के बारे में जब शिकायत करेंगे ना, गरीब बनेंगे. मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास धन बचेगा ही नहीं, बट धीरे धीरे कम होते जाएगा. आपको समझ में नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली जब एकदम एक्शन में आपको हिट करेगा तब आपको समझ में आएगा. आप ये बात समझिए कि जीवन में हमेशा अप्स एंड डाउन आता है. ऐसा नहीं होता है कि हर जन का जीवन एकदम 24/7 एकदम सुनहरा है. नहीं, सबके जीवन में ऊपर नीचे होता है. तो आप एक चीज समझिए, जब जीवन ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, आप खुद वो तूफान ला रहे हैं, आप खुद कंप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं और उसको और खराब करते जा रहे हैं, जो आपको आज से नहीं करना है. आपको वो सिचुएशन में भी जब बिजनेस नीचे डूबता जा रहा है, आपको क्या सोचना है? अरे वाह, मेरे पास एटलीस्ट बिजनेस तो है, कुछ तो पैसे आ रहे हैं मेरे घर के अंदर. ना कि आपको ये बोलना है कि देखो
ऊपर पैसे आ ही नहीं रहे, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, हो क्या रहा है, मैं कैसे जीएसटी भरूंगा या भरूंगी? नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. प्लीज कंटिन्यू. आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायतें के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है. इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है. आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है. अधिकतर लोग को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं. असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी. हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते. धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार यह शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है. और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है. तो आप एक चीज सोचिए, कंप्लेन हमेशा इंटेंशनल नहीं होता है. मतलब आप जानबूझ के हमेशा कंप्लेन नहीं करते. कभी कभार क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग बिना जाने अनजाने में कंप्लेन करते हैं. कैसे? एक बात याद रखिएगा, कंप्लेन इज ऑलवेज शाब्दिक. मतलब आप मुंह से जो बोल रहे दैट इज ऑल्सो कंप्लेन. जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, मतलब वैचारिक, वो भी एक कंप्लेन, एक शिकायत है. अगर आप मार्केट में आम लेने गए, आम बहुत टाइप का होता है, लंगड़ा, हाफूस, हिमसागर, XYZ और तरीके का आम होता है. आप लेने क्या गए? लंगड़ा. वहां पे शॉपकीपर के पास अल्फांजो भी है, मतलब हापुस भी. आप क्या बोल रहे? मतलब आपका फोकस क्या, आपको लंगड़ा लेना है, बट आप उसके साथ बोल क्या रहे? उससे ऐसी दाम पूछ ले रहे. और आपको अगर लगता है वो बहुत महंगा तो आप क्या बोलते? अरे भगवान, इतना महंगा है हापुस जो आपको लेना भी नहीं है. जब आपको वो लेना ही नहीं है तो आप उस पर फोकस क्यों कर रहे हैं? आप अनइंटेंशनली, अनजाने में कंप्लेन कर ही क्यों रहे हैं? आप इसको करते समय धन को अपने से दूर लेके जा रहे हैं. सिमिलरली, अगर आपके घर पे आया बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो हम लोग कैलकाटा में CESC ऑफिस को बिल पे करते हैं. आप ऑफिस के एम्प्लॉय या संजीव गंगा को जाके तो बोलते नहीं है कि कितना बिल दे दिया है तुमने. नहीं बोल पाते ना. तो मन में रहता है कि इतना बिल आ गया, घर में किसी को टेंशन ही नहीं है. तो आप क्या कर रहे हैं? आप बोल किसी को नहीं रहे हैं, बड़ा मन में वो विचार ला रहे हैं. तो मन में विचार लाना, मन में कंप्लेन करना भी कंप्लेन कहा जाता है, और वो धन को आपसे दूर लेके जा रहा है. यूनिवर्स आपके मन को भी पहचानता है और आप जो बोल रहे हो उसको भी सुनता है. सो आज से प्लीज अवेयर हुइए, ना मन में कंप्लेन करना है, ना आपको मुंह से कुछ बोलना है. प्लीज कंटिन्यू. और एक और चीज आप याद रखिए, जब आप कंप्लेन कर रहे हैं, 1 कंप्लेन 10 ग्रेटिट्यूड आपको लिखना ही होगा, ताकि आप जो कंप्लेन किए उसका पूरा जो आप कंप्लेन किए वो खत्म हो जाए और सिर्फ अबंडेंस हो आपके जीवन में. प्लीज कंटिन्यू. आप म्यूट पे है. यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है. ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे. यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना. बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है. समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है. आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है. यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा. आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे.
तो लेखिका आपको खुद बोल रही है, जब आप अच्छे मन से मतलब मुंह नहीं बना के, नाक नहीं बना के, सैड नहीं होके जब धन देंगे ना, और धन या लेंगे भी, तो आप खुद धन के चुंबक बन जाएंगे, वो आपको गारंटी दे रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मनी इज नथिंग बट एन एनर्जी, इट इज जस्ट एन एनर्जी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में हो, एक नोट हो, कुछ भी हो। जब एक ना एक सर्कल है ये, जब आप पैसा दे रहे हैं आपका सर्कल स्टार्ट हो रहा है, और आप वापस जब ले रहे हैं तब सर्कल एंड हो रहा है। सिमिलरली जब पैसा ले रहे हैं सर्कल स्टार्ट हो रहा है, जब दे रहे हैं एंड हो रहा है, वाइस वर्सा। तो आपको एक चीज समझना होगा, दिस इज अ एनर्जी सर्कल। तो आप जितना उस एनर्जी में ग्रेटिट्यूड डालते जाएंगे, मतलब आप कृतज्ञ होते जाएंगे जब आप धन ले रहे या दे रहे हैं, तब आप देखेंगे कि आप धन के चुंबक बनते जा रहे धीरे धीरे करके। दिस इज अ सर्कल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइफ सर्कल है, वैसे ही एनर्जी सर्कल है मनी, और कुछ नहीं है पैसा, सिर्फ एक एनर्जी है। आप जितना, जब आप एनर्जी डालते हैं शरीर में, कैसे आप एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, वैसे ही जब आप धन में ग्रेटिट्यूड देते रहेंगे, वैसे ही आप चुंबक बनते जाएंगे, और अगर आप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा जीवन में। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। एक मिनट रुकिएगा ना, तो आप सोचिए, मतलब देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल देने का कोशिश कर रही है। अगर सपोज आप रेंट देते हैं तो अपने इस 7 महीना में बहुत ज्यादा धन का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, थिंग्स ऑन द वे वी वांटेड इट टू बी, तो हम लोग को जब रेंट देना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ढंग से घर में पैसा नहीं आ पा रहे, उसके बावजूद इनको शर्म नहीं है, इनमें से 3 महीना का फुल रेंट मांग रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, कंप्लेन। मगर आप सोचिए, अगर वो लैंडलॉर्ड आपको रेंट सिस्टम नहीं होता, वो लैंडलॉर्ड नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको एंड तक वेट करना पड़ता जब तक आप उतने पैसे नहीं कमा ली कि आप खुद का घर बना ले। अगर वो नहीं होता किराया जिसको आप पैसा देते हैं, तो आप क्या करते, आपको घर नहीं मिलता ना, आपको सड़क पर रहना पड़ता। आप ये सोचिए कि उस घर के कारण जिसके नीचे आप रह रहे, आपके बच्चे सेफ है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, आपके पास एक शेल्टर, एक छत्ता है जिसके नीचे आप रह पा रहे हैं। ना कि आप कंप्लेन करिए कि लैंडलॉर्ड ने एकदम बुद्धि नहीं है कि वो मुझे अभी भी 3 महीने का रेंट मांग रहा है। पैसे की जरूरत तो सबको होती है, जैसे आपके पास थोड़ा कमी है तो उसके पास भी हो रहा होगा ना, और लोग ऐसे बोल रहे होंगे ना, वैसे आप सोचिए। सिमिलरली आपको देखना है कि सपोज हम लोग ईएमआई क्या होता है, हम लोग जब इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं, तो हम जब एक गाड़ी खरीदते हैं, हम अगर सपोज 25 लाख की गाड़ी है, हर जन के पास नहीं होता कि वो तुरंत 25 लाख दे पाए,
धीरे धीरे करके हर महीना में देना आप दे सकते हैं। इतना सुंदर सिस्टम है कि आपको एक बार में नहीं पेमेंट करके धीरे धीरे करना है। तो हर मंथली इंस्टॉलमेंट्स जिसको बोलते हैं, तो आप जब मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी कर रहे हैं, हर महीना आप भी बोल रहे हैं शिट यार अभी वापस अभी तो इतना देना बचा ये गाड़ी का, बट आप सोचिए अगर ये सिस्टम नहीं होता लोन का ईएमआई का, क्या आप एक बार में आपके पास वो पैसा नहीं होता तो आप गाड़ी खरीद पाते? आपके पास एक गाड़ी होता इधर से उधर जाने के लिए नहीं। तो वेन एवर यू गिव मनी टेक मनी, आप एक नया साइकिल का शुरुआत कर रहे हैं। आप जब भी किसी से पैसा ले रहे हैं एक नया साइकिल है, जब दे रहे हैं नया साइकिल है। प्लीज रिमेम्बर, ये मत सोचिएगा कि मम्मी से आपके पास 10 रुपया ली तो अब तो धन्यवाद दे दी, उनको थैंक यू बोल दी, तो दिन में क्या बोलने का जरूरत है? नहीं, दिन में भी बोलना जब आप पैसा ले रहे या दे रहे। आप हर बार एक नया एनर्जी साइकिल का शुरुआत कर रहे, हर बार आप नया तरीके से किसी को पैसा दे रहे और अच्छे मन से दे रहे। प्लीज कंटिन्यू, आप म्यूट पे। जब मैंने से हाँ, जब से मैंने हाँ, जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे पैसे के लिए धन्यवाद। तो आज आपको क्या करना है? यशस्वी प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस पेज। तो यस, थैंक यू। तो आज आपको क्या करना है कि आपको ऐसा फील करना है कि जो धन आपके पास नहीं भी है ना वो आपके पास है, आप बहुत रिच है, आप बिल पे कर सकते हैं। जब आप बिलीव नहीं करेंगे अंदर में कि आप में कैपेबिलिटी है, आप पे कर सकते हैं, तब तक वो धन आपके पास आएगा ही नहीं। अगर हम पूरे दिन रोते रहेंगे पैसा नहीं है, मैं कैसे इसको पैसा दूं, कैसे न्यूज़पेपर वाले को पैसा दूं, सब्जी वाले को पैसा दूं, मंथली मनी दूं, सैलरी दूं, आप रोते रहेंगे, धन आपसे दूर जाते रहेगा। आपको फील करना है कि ऑलरेडी आपके पास वो धन है। तो आप क्या बोलेंगे? पैसे के लिए धन्यवाद, आपको ये बोलना है। और जब आप, क्योंकि आप ये बोल रहे बार बार 100% पैसा आपके पास आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद भुगतान हुआ। आप वापस ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि मैं बहुत धन्य हूं, मैंने पैसे दे दिए। आपको ये बात समझना है कि पैसे आने के बाद ना आपका कार्य खत्म नहीं हुआ, आपका अभी भी ड्यूटी बचा है। अभी भी आपको उस इंसान को धन्यवाद देना है और बोलना है धन्यवाद भुगतान हुआ। प्लीज कंटिन्यू, नेक्स्ट पेज। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और एक के सामने जादुई शब्द लिखे धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखे तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिल के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। एक मिनट, तो आपको क्या करना है? दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। 10 बिल ढूंढना है, कोई भी 10 बिल, ठीक है? और आप जो दे चुके, आपका स्टाफ आता हो, उसको आप बोलते हो ये सब्जी लेके आना है, फिर वो बिल लेके आता हो कि ये सब्जी का दाम हुआ, कोई बात नहीं, वो बिल आप कहीं फेंक दिए, घुमा दिए, आप नया बिल लिखेंगे। आप एक बिल खुद बनाएंगे आज
और जो बिल आप 10 दे चुके हो, या वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, फोन का बिल हो, कोई भी बिल हो, कोई डिलीवरी आया अमेजोन से, कुछ भी, और आपको क्या बोलना है, धन्यवाद भुगतान किया, क्योंकि आपने पैसा दे दिया है, तो उसके लिए भी तो आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा ना। दिस इज व्हाट टुडे वी आर लर्निंग, कैसे जो आप दे चुके हैं उसके अतीत के लिए धन्यवाद होना है, और जो नहीं भी दिए ना उसके लिए भी धन्यवाद होना है, प्रेजेंट के लिए भी आपको धन्यवाद होना है। यही लेखिका बताने का कोशिश कर रही है। प्लीज कंटिन्यू। आज के बाद यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उससे उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचे जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखे तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसे का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। आप लोग सब सुने, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। What goes around comes around. It is a cycle. तो आप जब धन दे रहे हैं, आप नाक मुंह मोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ भैया, आप सपोज भिखारी को धन देते रास्ते में, कितने बार हम लोग इरिटेटेड होते हैं, भिखारी बोल रहे हैं प्लीज दे दीजिए, हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ले ले, एकदम गुस्सा से ले ले। मतलब ऐसे नहीं करना है। आप बात याद रखिएगा, आपके पास भी घूम के वैसे ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई आप किसी से ऐसी कोई भीख मांगेंगे, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट आपको कभी मम्मा से पैसा चाहिए होगा ना, मम्मी हड़बड़ी में होगी, मम्मी भी बोलेगी हाँ ले लो, जितना रुपया लेना है ले लो, मम्मी भी सेम करेगी आपके साथ। आप ये बात को ध्यान रखिए। तो आप अगर नहीं मन में ठानेंगे कि जब भी आपको धन देना है पूरे मन से देना है, उस इंसान का बहुत भला हो, जीवन में उन्नति हो, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, पैसे की कमी ना हो। सपोज होता है बहुत बार, यू आर इन अ हरी, मतलब आपको ना इतना बोलने का कभी कभार लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलती है आप इतना बोल दीजिए, दया करे भला करे दाता निधान, सबका मंगल करे। आप अगर ये भी बोल के दे रहे हैं ना, खुश मन से दे रहे हैं ना, तो तभी भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। उसका इंटेंसिटी उतना नहीं है, बट आप दे रहे हैं, एटलीस्ट आप कुछ तो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। एंड हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप 10 रुपया दे रहे हैं तो आपके पास 10 रुपया वापस आए। अगर आप ऐसे बोले ना बहुत भला हो, जीवन में तरक्की हो, खुशियां आए, वो 10,000 रुपया भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकते हैं। सिमिलरली आप जब कम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, चाहे आप 1,000 रुपया भी दे, हो सकता है आपके पास सिर्फ 5 रुपया आए। तो आपको बोलना क्या है जब आप हड़बड़ी में हो, दया करो सबका भला करो दाता निधान सबका मंगल करो। ये बोलने के बाद बहुत बार मैं ये भी बोल देती हूँ, मैं बहुत धन्य हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं किसी का मदद कर पा रही हूँ, उसको धन दे पा रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द
धन्यवाद भुगतान किया। लिख दे, सचमुच कृतज्ञता महसूस करे कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आई होप आप लोग सब रोज काउंट योर ब्लेसिंग, मतलब अपनी नियामतें गिन रहे सुबह उठते ही, और रात को सोने के पहले जादुई पत्थर को हाथ में लेके सबसे अच्छी हुई चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। और आज आपको क्या करना है, 10 बिल लेना है जो आप जिसके लिए पेमेंट कर चुके हैं। आप खुद से बिल बना भी सकते हैं, मैंने बिल बनाया भी था क्योंकि मेरे पास इतना कुछ पेमेंट करने के लिए नहीं है, मैं नहीं करती हूँ ना, स्टाफ को, एम्प्लॉयज को पापा या मम्मा करते हैं। तो मैंने खुद अपना फोन का बिल ऐसे ही मैंने बिल बना लिया था, मैंने कोई स्टेशनरी खरीदा हो वैसे। तो ऑल द स्टूडेंट्स यू ऑल कैन मेक अ बिल ऑन योर ओन। एंड आपको और सोचना है कि आपके पास धन ऑलरेडी है, जो भी बिल आपको अभी भी देना बचा है, आपको मन में सोचना है धन्यवाद पैसे के लिए, धन्यवाद उस धन के लिए। एंड फीलिंग्स, बहुत फीलिंग्स देना है। और अगर नहीं दे पाए तो आप ये भी बोल सकते हैं, दया करे सबका भला करे, दाता निधान सबका मंगल करे। Thank you, Neelam ji, for reading the chapter in Hindi. Thank you so much. I will request Arinash to please take the charge. Thank you, Sakshi, and hello, good morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yashasvi, for explaining the chapter so beautifully. And thank you to both the readers, Pawan uncle and Neelam auntie, for reading the chapter so calmly and patiently. So, आज gratitude of money we have understood, like we have already spoken about paying अगर हम लोग को money का attraction अपने तरफ करना है तो we have to pay gratitude. But something different that we read and learned in today's chapter was when we give money to someone or when we receive money from someone, positivity से देना चाहिए. So क्यों money, हम लोग का ये जो positivity, जो नया चीज है वो चालू क्यों हुआ money के साथ? Because हम लोग का जो भी अभी life revolves around, it revolves around money. आप जो खाना खाते हो वो कैसे आता है, वो मनी से आता है। तो अगर आपका खाना कोई नेगेटिव मनी से आएगा तो आपका वो खाना में भी नेगेटिविटी आएगा, एंड देन योर बॉडी विल आल्सो इनटेक द नेगेटिविटी। व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन योर बेड, आपका जो बेड आया है वो कैसा मनी से आया, दैट लाइक मैटर्स अ लॉट, कि वो पॉजिटिव मनी से आया कि नेगेटिव मनी से आया है। इफ इट हैज कम फ्रॉम नेगेटिव मनी, you'll अंडरस्टैंड और you'll फील कि आपको रात में ठीक से नींद नहीं आता होगा, बिकॉज आपके वजह से रात को किसी और को नींद नहीं आ रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग किसी को मनी दे रहे या किसी से ले रहे तो इंटेंशन कैसी है हम लोग की, लाइक आवर इंटेंशन शुड बी गुड। व्हेन वी आर गिविंग मनी, वी शुड नॉट ओनली गिव मनी बट ऑल्सो वी शुड गिव विद आवर आईज, हार्ट एंड आवर माउथ। आपका जैसे कि आईज से कैसे, उसको ठीक से देखना, मतलब उसको अच्छे नजर से देखना व्हेन वी आर गिविंग द मनी। विद आवर माउथ उसको एक्चुअली ब्लेसिंग देना, लाइक when we are giving the money, just don't give money. उसको बोलो कि ये रुपया तुमको बहुत फलेगा, मतलब बहुत अच्छा होगा वो मनी तुम्हारे लिए। और with the heart actually feel it what you are saying, like आप उसको मनी देने के लिए बस नहीं दे रहे हो, you actually want that person to do something great with that money। मतलब आप अगर उसको आज नहीं दोगे शायद कोई और दे देगा, लेकिन आप अगर उसको दे रहे हो, you can have a selfish reason, अगर आपको खुद से नहीं, वैसे just have a selfish reason कि अगर हम आज इसको देगा, and if he actually is blessed with this, मतलब आप उसको blessing से दाद दोगे तो ये blessing आपके पास कभी आएगा, मतलब लौट के। and if it doesn't matter if you give 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, अगर आपका blessing अच्छा है, मतलब सच्चा है, आपका यूनिवर्स doesn't see कि आप कितने रुपया दे रहे हैं, यूनिवर्स sees the denomination। आप if you want 1 crore, आपको 10 rupees के notes में भी 1 crore मिल सकती है। So it doesn't matter the amount that you give, it matters कि आपका feelings क्या होना चाहिए। आपका universe has got lot of money। अगर if you think कि हम लोग का इतना पानी है, इतना हवा है, money is a very small thing for universe। आपके लिए notes print हो जाएगी, मतलब if you are actually, मतलब अगर आप सामने वाला का सच्ची में बहुत अच्छा चाहोगे regarding money with blessings कि actually वो life में करे, so universe will make sure कि you do great in life, you're actually getting all the blessings। this is called karma। आप जो कर्म करते हो वो ये उसी का फल आपको मिलता है, जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। this is your karma। so and when we are giving money, we should not think कि हम लोग के पास, मतलब हम उसको दे सकते हैं वो, मतलब और उसको हम, मतलब आई एम लकी टू गिव हिम मनी, मतलब दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट की, मतलब कि आप उसको दे सकते हो, मतलब
you are putting yourself in a little superior position here. Just be blessed कि आप उसको दे रहे हो, मतलब कि वो मनी उसके पास, डोंट थिंक कि आपके पास है उसके पास नहीं है. you आप जैसे वो सोचने लग जाते हो तो you are attracting that negative thing to yourself only. just be genuine with your feelings that हाँ ठीक है, I have got extra money, I'm just giving it to him कि उसका लाइफ भरे. and to all the people who say that money is not important, रुपया का इस दुनिया में क्या ही होगा ये वो, I'm telling you all won't ever get money. Why? Because आप लोग को मनी के लिए लव ही नहीं है. आप अगर बोल दिए मनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, you should have less amount of money. आप अगर आपका वर्ड्स ही ऐसा है कि जितना कम रुपया उतना ही ठीक रहेगा, रुपया ज्यादा होते ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा, आपको क्यों यूनिवर्स देगा? मतलब इफ यूनिवर्स नोस कि आपका प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा रुपया के आने से, तो आपको रुपया मिलेगा ही नहीं. सो बी लाइक, think before you talk. मतलब if you actually want money in your life, say that I have money in my life. Act like a rich person, behave like a rich person, think like a rich person. आप उसको 50 रुपीज देना, 70 रुपीज देने से पहले 10 बार सोचिए मत. इट्स अ मैटर ऑफ 20 रुपीज. लेकिन अगर आप वहीं पे, जैसे कि सोचिए इफ यू आर बार्गेनिंग विद समवन, बार्गेनिंग इज गुड, वंस द डील इज मेड, अगर आपका जो भी फाइनल अमाउंट हो गया है, आप उसको ब्लेसिंग के साथ दीजिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सब्जी आप लेने गए हो और कोई सब्जी का प्राइस है 100 रुपीज, तो आप क्या बोलते हैं, आप बार्गेनिंग कर रहे हो. सो बार्गेनिंग करते करते इट हैज कम डाउन टू 80 रुपीज, and but you wanted it to be 60 rupees. So if the price is decided 80 rupees, you can't do anything about it. It's your choice whether you want to take it or don't take it. If you want to take it, if you're giving the money, give it with blessings. ऐसे मत दीजिएगा कि हाँ भैया आप 80 रुपया रख लीजिए, हम तो हर बार आते हैं. Don't do that. जब तक bargaining is on, you can bargain it in any way. As soon as the bargaining stops, प्लीज गिव दैट विद ब्लेसिंग. मतलब आप कोई शॉपकीपर को भी दे रहे हो ना, उस जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ. सो 2 months पहले आई वेंट टू अ बार्बर, तो आपका क्या बोलते हैं, आई गॉट माय हेयर कट एंड ऑल ये सब. तो उसके बाद हम उसके पास गया तो ही हैड इंक्रीज्ड हिज, मतलब जो बिल यूजुअली आई पे उससे 200 रुपीज इंक्रीज हो गया था. सो आई वाज टेलिंग हिम कि आई डोंट माइंड पेइंग दिस मच, बट why should I pay? मतलब सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर, दैट इज बेसिक नेसेसिटीज. मतलब इट डजंट मैटर कि जो सब चैलेंजेस हो रहे हैं अगल बगल, कि उसके वजह से यू आर कीपिंग इट एंड यू आर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा मनी. सो ही सेड नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट है, यू हैव टू गिव. तो दैट टाइम आई गॉट वेरी इरिटेटेड एंड आई गेव हिम 200 रुपीज इरिटेट होके एक्स्ट्रा, जो भी टोटल अमाउंट था इरिटेट होके. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, आई डिडंट गेट अ गुड हेयर कट. इट इज नॉट बिकॉज कि वो बाबर मेरे से अपना गुस्सा भरास निकाल दिया. आई तो पेड हिम हिज मनी ओनली, उसको प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन इट इज दैट आई डिडंट अप्रिशिएट हिज सर्विसेज, आई डिडंट अप्रिशिएट हिज सर्विसेज, तो मेरे को वो हेयर कट नहीं मिला. सो आई मेड श्योर आफ्टर द बैड हेयर कट, आई ऑब्वियसली फेल्ट बैड, बट वो जितना भी मनी मांगा था उस टाइम के लिए आई गेव हिम विद ब्लेसिंग्स. मतलब कि हाँ ये मनी बहुत अच्छा, तुम्हारे को आज ये मनी से बहुत तरक्की होगा, like he'll earn more money with this money. I gave it like that. Or this time I got a perfect haircut, the haircut that I like, the puff hair that I like, I got a perfect haircut. So it is very important कि हम लोग जब दे रहे हो तो blessings के साथ दे. So इसमें और कुछ I don't think I should be adding in this. और आप when we wake up every day we should do money affirmations. तो money affirmation से क्या होता है, we attract the money. अगर हम लोग अपने आप को बार बार बोलते रहेंगे कि I am a money magnet, I attract money and all, I'll tell you the affirmations, we'll do it right now. तो जैसे कि हम लोग उस दिन हेल्थ का अफर्मेशंस किए थे तो वी फेल्ट वेरी गुड. हम लोग में अलग ही लाइक हम लोग का बॉडी को बहुत अच्छा फील हुआ था. वैसे ही व्हेन वी आर डूइंग विद मनी, our money starts feeling good. End of the day all these things are energy only. So to actually energize, मतलब ये एनर्जी स्टार्ट हो, बूस्टअप हो, उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. मतलब हम लोग को अफर्मेशंस यूज करना होगा. अफर्मेशंस आर यूज्ड क्योंकि यूनिवर्स को बताना होगा कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम व्हाट हैपेंस कि बहुत बार हम लोग को अफर्मेशंस बोल भी देते बट दे डोंट यूज इट. बोलते टाइम नहीं है. मतलब 5 मिनट आपके पास, आपको जो चीज चाहिए उसके लिए टाइम नहीं है. मतलब आपको वो चीज अपना लाइफ में 24/7 एक्सपीरियंस करना है, लेकिन 5 मिनट उसको पाने के लिए कुछ बोलना है, वो उसके लिए टाइम नहीं है. आई हियर पीपल की लिखना पड़ेगा काउंट योर ब्लेसिंग्स. रात को मैजिक रॉक सोने से पहले लिखना होगा. दिन में 24 आवर्स आप जब पूरा दिन एंजॉय करते हो, जो मस्ती करते हो, तब आप सोचते हो कि क्यों मस्ती कर रहे, क्या कर रहे. तो लिखने के टाइम में क्यों सोचना. यू जस्ट हैव टू राइट द गुड थिंग्स दैट यू हैड. सो प्लीज आप ये चीज में अगर
आलस या लेजी बन जाओगे तो फिर यू वोंट सी मैजिक इन योर लाइफ. अभी हम लोग बहुत अच्छा रेट में जा रहे हैं. वी आर सीइंग मेनी पीपल एक्चुअली सीइंग मैजिक. पीपल हैव नाउ स्टार्टेड शेयरिंग. So please let's continue the flow. If you all haven't still started doing the assignments, please do the assignments. अभी तक लेट नहीं हुआ है. जब जागो तब सवेरा. So ठीक है. I want everyone to close your eyes and join your hands and feel every line. जो हम बोलेगा, say it out loud. Like you have to say it out loud and feel the lines. So everyone close your eyes and join your hands and take 3 deep breaths. I am money magnet. Money flows into my life. The more I spend, the more money I receive. Money is coming to me. Money is coming to me. Money constantly flows into my life. I receive lots of money from the universe. I feel wealth flowing towards me. Unexpected money simply falls into my lap. I have a money mindset. Money comes to me easily and effortlessly. I receive money just by thinking luxurious things. I always think positive about money. Money constantly flows into my life. Money is coming to me. Money is coming to me. I am tuned into the flow of prosperity. God's wealth is flowing into my life. All my needs, goals, and desires are met instantaneously by the infinite intelligence. All my goals, needs, and desires are met instantaneously by infinite intelligence. I attract luxury, success, fame, and money. I am born to succeed. Thank you, thank you, thank you. Now you all can open your eyes whenever you all feel comfortable. So I want everyone to open your eyes now slowly, slowly. And please share how did you all feel. Please share it in the chat box, or if you all can unmute and say how did you all feel after doing this money affirmation. Like, did you all actually feel wealthy right now? Hi Raj, thank you. I genuinely felt really, really good. Thank you. Thank you for the amazing visualization. You all just need to sit down for 5 minutes when you wake up and just do this. Like, I'm telling you, within 10 days you will see money coming towards you. Either you'll get discounts in a lot of things that you want to buy, or money will start getting attracted to you. आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा. मतलब आपके पैंट के पॉकेट से निकल जाएगा, आपका ड्रॉर से अचानक से निकल जाएगा. Those monies are also monies. आपको 10 rupees, 20 rupees सामने में दिखेगा. When you start doing these things again and again, बार बार आप जब करोगे ना, तब आपका गीता में भी लिखा है, when you do meditation, so to actually get into that state, जो आपका divine state, मतलब to see the divine thing, you need to do 6 months of practice. ये तो हम लोग मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ तो करना ही होगा प्रैक्टिस. लाइक वी कांट एक्सपेक्ट 3 दिन 4 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी है 10 दिन प्रैक्टिस करते 11 डे से छोड़ना वही होता है. तो नहीं, 6 months फुल प्रैक्टिस करना है हम लोग को. This is a lifetime practice that we have to do. अगर 6 months कर लिए तो फिर you are not going to stop. Like you won't break it. आर्यन, Yes, auntie.
तुम्हारा वर्ड का सिलेक्शन बहुत सही था। आप जो आप लोग लिख के देते हो ना, अभी इतना फील कर पा रहे, तो अगर हो पाए ना तो प्लीज ऑडियो मैसेज देना ना। तो एक 21 डेज का जो साइकिल वाला तो एटलीस्ट हम लोग सब प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके ठीक है, आंटी, ऑडियो में परफेक्ट। वो पॉजिटिव अबाउट मनी, सबसे पहले तो वो जो हम लोग भूल रहे हैं वो तुमने याद दिला दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank आंटी. you. एंड इफ वी वांट टू प्रैक्टिस अबाउट बीइंग पॉजिटिव अबाउट मनी, क्योंकि जब हम लोग मनी देते हैं तो वो पॉजिटिविटी से देते तो बहुत कम ही है. लाइक इफ यू लाइक बहुत सडनली आपको किसी को बहुत देना पड़ गया अचानक से, सो आप बहुत मन भारी करके अपना देते हो, तो उस टाइम भी ब्लेसिंग के साथ दीजिएगा. एनीवेज मनी तो देना ही है, फर्क क्या पड़ता है दे रहे कि नहीं दे रहे. अच्छा फीलिंग्स के साथ ही दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जब खराब फील कर रहे हो तो वो एज सच कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस आपके अंदर ही हो रहा है. और आप जिसको दे रहे हो उसको भी कुछ डिफरेंस नहीं होगा. ही विल टेक इट फ्रॉम अ पॉजिटिव वे. लाइक पीपल से ना कि अलग अलग नंबर्स होता है या कुछ होता है, सो दीज आर फॉर पॉजिटिविटी ओनली टू गिव द मनी. हम लोग यूज नहीं करते पॉजिटिविटी, तो वो नंबर्स को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया जाता है. यू मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग दोस पॉजिटिव नंबर्स. So अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है या आपको बताना है हाउ डिड यू फील, कोई शेयरिंग है, you all can now do it. एंड you all can play, oh sorry, yeah, you all can play monopoly. like अगर हम लोग को रुपया देने का हैबिट की वजह से, लाइक इफ वी आर नॉट हैप्पी, लाइक मतलब हम लोग पॉजिटिव वाइब नहीं करते, तो प्ले मोनोपोली. इट्स अ गेम, ठीक है. तो वहां पे गेम में इफ यू लूज मनी ऑल्सो, तो हम लोग इरिटेट हो जाते गेम में कि ओह शिट हार रहे. गिव इट विद पॉजिटिव थिंक कि वो रियल मनी के साथ यू आर प्लेइंग, एंड गिव इट. हाँ हाँ ठीक है, तुम और प्रॉपर्टी बना लेना, हम भी बनाएगा. लाइक गिव इट विद प्रॉपर पॉजिटिविटी की हाँ ठीक है और आएगा मेरे पास. The more, why did we add this line in the affirmations? The more I spend, the more I receive. क्योंकि आप में अगर वो बिलीफ ही होगा ना, जितना ज्यादा स्पेंड करोगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करोगे. Why am I saying the money you receive effortlessly? जो लोग बोलते हैं मनी अर्न करना हार्ड है, वो लोग को डिफिकल्ट लगता है. There are people who find it very easy. Earning money is a very simple task for them. एंड दे एक्चुअली अर्न मनी एफर्टलेसली. वो लोग को कोई इश्यू भी नहीं होता है, जाते ऑफिस 4-5 आवर्स काम करते हैं, एंड दे हैव गॉट मनी इन अबंडेंस. दे डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो आपको अपना थिंकिंग वैसा रखना होगा. द वे यू थिंक अबाउट मनी, मनी विल बिहेव लाइक दैट. सो everyone please ask any question, and before the question let's do today's shukrana. Thank you God, I woke up early and fresh. Thank you, water, for keeping me clean and hydrated. Thank you for the fresh air that I breathe. Thank you for the money in abundance that I receive, which allows me to buy all the luxury items that I want, all the demands, all the necessities that I have, and to help the society. Thank you, our parents, to love me. Thank you, my parents, for loving me, for caring about me, for supporting me, and for always fulfilling my demands. Thank you, my friends, for always checking on me, for appreciating me, for entertaining me. Thank you, our grandparents, for loving us and for giving us our blessings. Thank you, God, for my family's safety, good health, and prosperity. Thank you, thank you, thank you. So any So question? if you all have any questions regarding previous assignments or today's assignment, please feel free to ask. And if you all have any sharings to do, if you all experienced some magic in your life, please share. Any? I have something to say. Actually, hello, can you hear me? Yes, Pratibha aunty, yes. I'm saying that I have missed the first session, first day class. So I actually don't know what's magic rock. What is a magic rock? So can you provide extra effort for it to make me understood about the first day lesson, because the basic I have missed out, and I'm really thankful you three guys. You all are doing very amazing. Matlab, you are the warriors or pillars. Really appreciate it. Thank you. Mhm. So yes, sure, auntie. So auntie, I hope you must have seen Count Your Blessings and Day Zero chapter. Auntie, I'll tell you about Magic Rock right now, but please do see the video. Like it is very important to understand with examples also, because right now if we explain it to you, आपको feel नहीं आएगा करने में. So Magic Rock is basically
आपको रखना है ताकि आपको याद रहे कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है। लाइक रात को सोने से पहले यू हैव टू होल्ड, मतलब आपको देखिए इट्स अ मैजिक रॉक जो आपको बेसिकली अपना हाथ में रात को इसको पकड़ के रखना है, और जो भी आपके दिन में अच्छा चीज है, मतलब ओनली पॉजिटिव थिंग, आपके जो अगल बगल लड़ाई वराई है उसको इग्नोर कीजिएगा। आप बस पॉजिटिव जो चीज के लिए खुश है, मतलब ये मेरे को ये सिखाई, ये मेरे को ये खाना बना के दी, या फिर आपका बच्चा आपको रिस्पेक्ट दिया, या फिर आपके बच्चे ने पढ़ाई की, आपको उसके लिए खुशी हुआ। सो राइट इट डाउन with the magic rock in your hand and reread what you have written and feel it, मतलब and say thank you for this thing happening, like आपके आज शायद वो आपके साथ होता ही नहीं, तो इसलिए say thank you कि ये हुआ है। तो आंटी इसका रीजन है कि हम लोग का जो माइंड है that has got two parts, एक होता है सबकॉन्शियस साइड और एक कॉन्शियस साइड। सबकॉन्शियस साइड is the 95% while conscious is the 5%। तो when we sleep at night तो सबकॉन्शियस माइंड उठ जाते हैं हम लोग का, जो सबकॉन्शियस जो अनसबकॉन्शियस माइंड है वो उठ जाता है जब हम लोग सोते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो पूरा टाइम वही सोचता है जो हम लोग एंड में बोलने से पहले सोचते हैं। क्यों हम लोग क्यों सब लोग बोलते हैं घर में भी कि गुस्सा में मत सोना, मतलब रात को सोने से पहले बस गुस्सा या नाराजगी में मत सोना। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो ब्रेन है वो तो पूरा रात ही एक्टिव रहता है, आप सो जाते हो, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कभी नहीं सोच पाता है। सो रात को सोने से पहले जस्ट थिंक, और वो आपका लास्ट चीज होना चाहिए, मतलब अगर आप उसके बाद वॉशरूम जा रहे हो फ्रेश होने, या फिर आप एसी का टेम्परेचर ठीक कर रहे हो, अपना अलमारी से रजाई निकाल रहे हो, अपने बच्चे लोग को गुड नाइट बोलने जा रहे हो, सो वो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपका वो लास्ट चीज हो गया। तो आपका माइंड विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दैट थिंग, एंड इफ यू वांट योर माइंड टू फोकस ऑन वॉशरूम, तो इट डजंट मेक सेंस कि आपका माइंड 8 आवर्स 10 आवर्स आप जो भी टाइम सो रहे हो वो उस पर फोकस्ड है। लेट्स इसलिए होता है कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि रात को सोने से पहले प्रे करना चाहिए, जो एंड चीज होता है कि भगवान को जो प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? ताकि हम लोग का माइंड वो प्रार्थना से समझ जाए कि वो प्रार्थना पे ही फोकस रहे, जो भी अपनी प्रार्थना थी। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं वी जस्ट डोंट से वर्ड्स, वी फील इट, मतलब वो जो प्रार्थना की वर्ड्स होती है वो हम लोग फील करते हैं। सो दिस इज द होल लॉजिक बिहाइंड आपका मैजिक रॉक। और आंटी सेम लॉजिक है काउंट योर ब्लेसिंग्स की, जैसे कि मैजिक रॉक आपको लास्ट काम करना है सोने से पहले, काउंट योर ब्लेसिंग्स मतलब आपको जो चीज बहुत इजीली मिल जाती है, 10 चीजें, मतलब जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, सन, वाटर, आपकी आंखें, आपके नाक, मतलब जो भी आपका बॉडी पार्ट्स, आपका नेचर, जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल है, फॉर योर पेरेंट्स, मतलब जिसके लिए आप इनफ ग्रेटफुल नहीं हो, जो आपकी ब्लेसिंग्स है, लाइक आपको कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए, वो चीज आपको सुबह उठ के काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। और जब, क्योंकि आप जब सुबह उठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी सोने जा रहा होता है, तो जब वो सोने जा रहा होता है आप तब भी उसको पॉजिटिविटी से भर देते हो। और सबकॉन्शियस माइंड इज 95% ऑफ आवर ब्रेन। तो हम लोग को देख रहे हैं कि 95% ऑफ आवर ब्रेन इज ओनली अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। तो इसलिए मैजिक रॉक का काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स करना है आंटी। एंड आंटी फॉर मोर लाइक फर्दर एक्सप्लेनेशन प्लीज सी द वीडियो, लाइक ये बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। और Oh, आंटी okay, I will see it. But I'm saying where to get this magic rock? मतलब any type of rock I can take it, or something prescribed in this rock? तो आंटी आपका रॉक का बेसिकली ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड कि इट शुड बी अ रॉक, एंड आपका क्या बोलते हैं, इट शुड फिट इन योर हैंड, मतलब आपका साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ में फिट नहीं आ रही, क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग इट एंड व्हेन यू आर रीरीडिंग इट, वो आपके हाथ में, आपका हाथ में जो एनर्जी है उसके साथ आप बोल रहे हैं, यू आर फीलिंग इट व्हेन यू आर सेइंग इट। तो इसलिए आपके हाथ में एनर्जी, एंड इट शुड नॉट हैव शार्प है जैसे आपको हाथ में लग रही कि मतलब, क्योंकि आप जब फिर उसको पकड़ोगे और बोलोगे ना, आपका वो फीलिंग से ज्यादा फोकस उस पे होगा कि आपका हाथ में इरिटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसलिए कि टेक अ रॉक जिससे आप खुश हुए, मतलब व्हेन यू होल्ड योर रॉक आपका मुंह में स्माइल आना चाहिए, दिस इज द रॉक आई वांट। आप रास्ते से भी ले सकते हो, इट में अगर रॉक डर्टी भी है क्लीन कर दीजिएगा, कौन सा बड़ा बात है। Okay. Thank you. और जब भी आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखे ना, प्लीज वाई लिखना मत भूलिएगा। सपोज आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पानी के लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट वाटर विच कीप्स मी हाइड्रेटेड, आप इस कारण इससे ग्रेटफुल है, तो वाई लिखना मत भूलिएगा, क्यों आप धन्य हैं। ठीक है? Okay. Actually, I started your practice because previously I won't do it, but after attending your sessions, I started doing thank you whenever I'm having the lunch or dinner or water. Matlab, I'm feeling so good that I can't say. Matlab, I started from last 2-3 days. I'm attending your session from day 3.
So from the beginning, I then started. I thought it no, let's hear what you all say. Lekin from last 3 days, I'm starting these practices. So I can't say you three guys are amazing. Matlab, I'm feeling so grateful after having the water. I'm doing thankful. I'm before having the lunch. I'm doing the matlab saying thanks to the God, and then the food becomes so tasty. Matlab, I can't say it out in words. Thank you. Thank you so much. We're really glad that you're Thank you practicing. so much. Thank you. Anyone has any other questions, sharing? Wow, Vipansi. She says that she started to drink more water because of this practice. That's amazing. And one more thing, everyone. So this is like whoever has joined for the first time or has joined since 2 to 3 days. Day 0, day 1 and day 2 is the basis of the whole session, magic book session. की अगर आप day 0, day 1, day 2 miss कर दियो तो मतलब it is very difficult to see the magic. के day 0 तो आपके dreams है, मतलब जो चीज के लिए आए हो आप वही चीज miss कर दियो. मतलब आपको dreams लिखना हम लोग ने सिखाया, how to write down your dreams. अब आपको लगता होगा कि dreams लिखना बहुत easy काम है, but इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. आपको कम से कम 1 घंटा लेके बैठना पड़ेगा, पहला 10-15 मिनट टू अंडरस्टैंड आपको लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या. फिर जब लिखने जाओगे आपका कितना एडिटिंग. आई नो माई फ्रेंड्स who have written their dreams twice, thrice, 4 times. I myself wrote it 5 to 6 times because I made so many mistakes. When you start making mistakes, then only you learn. So write down your dreams, and if you have any confusion about your language of the dream, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. आप इसी के लिए तो आए हो, अपने ड्रीम्स के लिए. अगर आप अपना ड्रीम्स ही गलत लिख दिए तो उसके बाद हाउ विल यू सी द मैजिक. एंड डे 1 एंड डे 2 इज लाइक पूरा लाइफ आपको करना है. जैसे फ्रॉम डे 3 वी सी की हम लोग को डेली असाइनमेंट मिलता है, लाइक डे वाइज असाइनमेंट. बट फ्रॉम डे 0 इट इज अ डेली everyday assignment, like continue throughout your life. Acha, please post the day 0 video in the group Yeah. now. Okay, sure. Okay, thank you. Yes, fine. और किसी को कोई भी क्वेश्चन है, शेयरिंग है, एनी डाउट, एनीथिंग, आप पूछ सकते हैं. So it is 9 o'clock right now. We'll wait for 5 more minutes. तब तक आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे. और आज का जो टास्क है उसके लिए आपको अगर 10 से ज्यादा बिल भी मिले ना, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके, हैप्पीली आप 10 से ज्यादा बिल्स में भी लिख सकते हैं थैंक यू पेड. 10 इज जस्ट द मिनिमम जो लेखिका बोली है. यू कैन टेक 10 एंड मोर बिल्स. एंड अगर 10 बिल नहीं मिले, प्लीज मेक श्योर कि आप नकली बिल, मतलब इन द सेंस एक पेपर ले और बिल लिखे. ये जैसे मैंने लिखा है, आई एम थैंकफुल टू हैव शार्प मेमोरी हेल्पिंग मी टू रिमेम्बर कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली. थैंक यू. तो इसमें वाई भी आ गया. एक सेकंड आंटी, आपका ड्रीम क्या है आंटी? ये आपका ड्रीम है ना, और इट इज योर ब्लेसिंग. व्हाट डू आई वांट इन द एरिया ऑफ दिस इज माय फाइनेंस. मैंने इसमें हैक में भी लिख सकती हूँ या इधर. आंटी मतलब आपका जो आई हैव अ शार्प माइंड, जो आपका आप लिखे हो, आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग अ शार्प माइंड. सो आपका ये ड्रीम है या फिर आपका ये ब्लेसिंग है, लाइक डेली ब्लेसिंग्स की तरह आप लिखते हो? लाइक क्योंकि मैं अपना माइंड का डेली ब्लेसिंग की तरह लिखता हूँ. आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ शार्प I माइंड. want a sharp memory for myself. So I have written, I am thankful to have sharp memory, helping me to remember consciously and subconsciously. Thank you. आंटी ठीक है आपका. ठीक आंटी है ना? आई एम थैंकफुल टू हैव की जगह आप लिख दीजिए आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव. मतलब इसमें थोड़ा लग रहा है कि इट्स लिटिल फ्यूचर का उसमें लग रहा है. तो आप लाइक ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. मतलब कि आपका और यूनिवर्स का लैंग्वेज बहुत सिंपल है. मतलब यूनिवर्स को इतना हाई फाई लैंग्वेजेस से फर्क नहीं पड़ता है. यूनिवर्स इज ओके विथ योर सिंपल लैंग्वेजेस. बस आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं. जैसे यू वांट टू हैव अ शार्प माइंड,
I am grateful that I have a sharp mind. और आपका रीजन क्या आंटी? Sharp memory, helping me to remember consciously and subconsciously. ठीक है आंटी, helping me to remember, तो ये आपका रीजन हो गया. सो राइट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव, ऐसे करके लिखिएगा. हम लोग जब भी ड्रीम्स लिखते हैं आंटी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव करके लिखते हैं. लाइक इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आपका यूनिवर्स के साथ. Okay, thank you. Thank you for your question. For your question. और आंटी आपके और भी रीजंस अगर है तो आप सारे रीजंस लिखिएगा. लाइक अगर आपको मतलब कोई चीज समझने के लिए भी शार्प माइंड या शार्प मेमोरी चाहिए तो फिर वो चीज भी लिखिए. मतलब कि अगर आप लिख रहे खाली याद रहे तो फिर यू आर अट्रैक्टिंग ओनली रिमेम्बर टू योरसेल्फ. मतलब कि आपको बस वो याद ही रहेगा. अगर आपको समझने का लिखना तो आप समझ का भी लिखिए. आपको जो चाहिए अपना ड्रीम के साथ वो सारा रीजंस लिखिए. समझने का मतलब कैसे? मतलब जैसे कि we are what is our mind, मतलब our mind is needed for understanding and remembering things. So अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी रीजन है आपका, मतलब अगर आपका माइंड, you want a sharp mind to understand things easily, so write that Sharp reason. memory, हाँ, mind, yes. हाँ. So तो वही आंटी, मतलब कि कि आपका वो जो भी, grateful करके. हाँ, तो वो सारा रीजन लिखिए. जितना ड्रीम को डिटेल में डाल सकते हैं ना उतना डालिए. आपको शार्प मेमोरी चाहिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों साथ में ढंग से चले. बट उसके बाद भी और भी तो चीज चाहिए ना, कि मे बी आपको एक्सरसाइज मैथ प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर पाए, या आप जल्दी से कुछ आपको जो कैलकुलेशन करना है तो आप कर पाए. तो जितना डेप्थ में जा सकते हैं ना आप जाइए, जो आपको चाहिए. दैट विल बी इजियर फॉर द यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड. और उसको हमेशा रोज बोलिए, सोचिए, जोर जोर से बोलिए और महसूस करिए कि वो हो गया ऑलरेडी. और आंटी आपको जो चीज के लिए चाहिए, मतलब अगर एक्सपीरियंस करना है तो हम लोग को तो बस लिखना है, हम लोग को मिल जाएगा. लाइक तो बहुत इजी चीज है. So I can write for my husband also. आंटी राइट नाउ डोंट. राइट नाउ पहले अपने पे देखिए. अगर आपके हस्बैंड को चाहिए, आस्क अंकल टू कम एंड अटेंड द सेशन. क्योंकि एट द एंड So ऑफ द, like no, just I wrote my hubby has abundance of man dhan. I enjoyed and feel happy to see him happy, healthy. So I missed something. हाँ, happy, healthy. Thank you. देखिए आंटी, आप ये मतलब आप लिख सकते हैं ये, बट अभी ना बिगिनिंग स्टेज है. सो अभी आप पहले अपने पे फोकस करिए, देखिए कि वो हो रहा है जैसे. तब आपका बिलीव जब बढ़ेगा ना तब आप बढ़ेगा. कि हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे हम लोग किसी और के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, किसी के जीवन में और कुछ लाने के लिए. तो एट द मोमेंट आप अपने पे फोकस करने का ट्राई करिए, फिर धीरे धीरे आप आगे जा सकते हैं. और आंटी अभी आपने जैसे कि शेयर किया कि आपके हस्बैंड हैप्पी एंड हेल्दी, पर आप डिफाइन नहीं किया हैप्पी और हेल्दी. कोई इंसान के लिए 100 रुपीज भी बहुत हैप्पी वाला फीलिंग होता है. मतलब यूनिवर्स डजंट नो आपके लिए हैप्पी फीलिंग क्या, आपको बतानी पड़ेगी कि आपके लिए हैप्पी क्या. तो आप लिखिए, मतलब हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या आपके लिए. 1 लाख हैप्पीनेस है, 10 लाख हैप्पीनेस है, 10,000 हैप्पीनेस है. सो दैट. और हेल्दी बॉडी क्या आपके लिए, मतलब किसी के लिए आंटी बस बेड से उठना ही हेल्दी चीज होता है. और किन लोग के लिए आंटी बहुत अच्छा बॉडी 100 मीटर 9 सेकंड्स 10 सेकंड्स में कंप्लीट करना हेल्दी चीज होता है. मतलब हर इंसान का अपना हेल्दी और हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग होता है. सो इफ यू कीप इट टू यूनिवर्स, आपका हेल्दीनेस और हैप्पीनेस, यूनिवर्स आपको कुछ भी दे सकता है. फिर व्हाई डू वी क्राई आंटी? प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग भगवान को बोलते नहीं है कि हम लोग को चाहिए क्या. हम लोग बोलते हैं कि जो अच्छा लगे वो दे दो. तो भगवान को जो अच्छा लगता है वो हम लोग को अच्छा लगता ही नहीं है ना, इसलिए हम लोग ह्यूमंस हैं. सो आपको जो अच्छा लगता है वो बैठ के लिख दीजिए आंटी. डिफाइन इट. 1 घंटा लगता है, अकेला बैठ के 1 घंटा लिखिए, सब ड्रीम हो जाएगा आपका. डिफाइन एवरी ड्रीम और आपका हर एक रीजन दीजिए. तो ड्रीम और टू डू लिस्ट इज डिफरेंट ना? हाँ, मतलब टू डू लिस्ट क्या होता है, हम लोग रोज में बनाते हैं. हर रोज आप कुछ ना कुछ का लिस्ट बनाते होंगे ना. डिपेंड्स आपके अकॉर्डिंगली टू डू लिस्ट होता क्या है. मतलब अगर आप एक हफ्ता का पूरा टू डू लिस्ट बना रहे हैं या रोज, जैसे मैं क्या करूंगी, अगर मुझे पता है कि मुझे पूरे दिन में ये कुछ करना है, दैट इज माई टू डू लिस्ट. ड्रीम इज नॉट
समथिंग यू कैन डू एवरी सिंगल डे ना. आप टाइम से धीरे धीरे करके उसको अचीव करते हैं ना. आप उसके लिए सोचते रोज है, आप मन में सोचते वो हो रहा है, बट ऐसा नहीं है ना कि आप रोज कर रहे हैं. आप एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं अपना ड्रीम को पाने के लिए. दैट इज यू आर डूइंग समथिंग टू अचीव योर ड्रीम. देयर इज अ डिफरेंस टू डू लिस्ट एंड ड्रीम में. एंड सपोज आप बोले आपके हस्बैंड का, तो आप हेल्दी बॉडी चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो उनका 50 kgs हो तो लिखिए, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय हस्बैंड हैज attained the ideal weight of 50 kgs. He's being able to run this much, that. हर चीज जितना स्पेसिफिक हो सकता है बोलिए. माय गॉड. अच्छा, मैं तो सीधा ऐसे लिख रहे हैं ना. आंटी आपको ये चाहिए तो लिखने में क्या फर्क करता है? मतलब हम लोग नहीं को ये चीज, लिखेंगे ना अब जैसे आंटी पूरा लिखे. अरे नहीं डिटेल आंटी, में हम लोग को लिखना. लगता है ना कि इतना डिफाइन क्यों करे, मतलब कि हम लोग को हाँ. उतना ही डेफिनेशन के साथ चाहिए भी. ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, 50 का 53 हो तो चलेगा, वो भी तो हम लोग के साथ नहीं होता है ना. तो लेट्स डिफाइन जो चाहिए. और डे 0 का वीडियो देख लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए. आपने समझना नहीं भेजा है. हाँ? डे जीरो का वीडियो नहीं आया मेरे पास हाँ, में. मैंने उसमें आपको भेजा था, मैं चैट वापस भेज दूंगी आपको, आज भेज दूंगी. 1 से है. वो अच्छा, मैं वापस डे 0 भेज दूंगी. और जब भी आप ड्रीम्स लिखे, आप नॉट शब्द ये मत, सपोज आपको लिखना है कि मैं बहुत जल्दी काम और कंपोज हो जाऊं, आप ये नहीं लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम नॉट गेटिंग एंग्री. यूनिवर्स को नॉट शब्द समझ ही नहीं आते हैं. वो सोचेगा आई एम सो ग्रेटफुल आई एम गेटिंग एंग्री. इसको तो गुस्सा होने में मजा आता है, इसको गुस्सा ही दिलाते हैं. आपको लिखना आई एम सो. अपने वर्ड्स और सेंटेंस को चेंज करने में कितना टाइम लगता है, बिकॉज लाइक वी आर लाइक कंडीशन with the certain words and sentences. तो आपको लिखना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, हाँ. काम एंड कंपोज. ऐसे आपको बोलना है, जो चाहिए वो लिखिए, ना कि जो एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है कि आपको उसको करना है. And what do I want in the area of finance and what do I want in the area of relationship or family, तो वो भी ड्रीम्स में ही आ जाते हैं ना. हाँ, आप कोई भी 10, हाँ हर चीज ड्रीम में होता है. रिलेशनशिप, फैमिली, फाइनेंस, हेल्थ, कोई आपको कोई गिफ्ट चाहिए, कोई आईफोन चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग इज ड्रीम. कुल मिला के रीडिंग ऑफ बुक, हाँ, रीडिंग ऑफ एनी बुक, और वो सब भी ड्रीम्स में आ सकते हैं. आंटी अगर आप वो करते नहीं और आपको लगता है कि वो आपका ड्रीम है, तो वो ड्रीम आंटी, अब ये चीज हम लोग आपको नहीं बोल सकते. मतलब आपका क्या ड्रीम है क्या नहीं है वो हम लोग का बस का नहीं. फिर तो हम लोग अपना ड्रीम आप पे थोप देंगे, वैसे हो जाएगा. नहीं. So हाँ, so this is you have to decide if it's your dream or not. अब वर्कआउट करना कितना लोग के लिए ड्रीम होता है और कितना लोग के लिए रोज का काम होता है. So for many people वर्कआउट आपका काउंट योर ब्लेसिंग लिस्ट में आएगा, पर कितना लोग का वो होता है कि वर्कआउट इज माय ड्रीम, आई एम वर्किंग आउट डेली, इट्स अ ड्रीम फॉर देम. सो अब ये आपको डिसाइड करना है कि इट्स योर ब्लेसिंग और इट्स योर ड्रीम. आप सोचिए आपके लिए क्या है. ओके, थैंक यू. तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. हम लोग कल आपको, इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, अगर किसी और को कोई क्वेश्चंस पूछना है. Okay, so I think no one has any questions. So thank you for coming and staying till the end, and have a magical day. Hope to see you all tomorrow. Thank you.